అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సాధారణంగా ఈరోజు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి 4th లెసన్ కణ్ కణ్ కా అధికారి చెప్పబోతున్నాను. నిన్న ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ లెసన్లోకి వెళ్ళబోతున్నాము. చాలా మంచి లెసన్, ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్. జాగ్రత్తగా వినండి. కణ్ కణ్ కా అధికారి నిన్నే చెప్పాను దాని డెఫినేషన్. ఇవాళ లెసన్లోకి విషయ ప్రవేశంలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విషయ ప్రవేశం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. मेहनत ही सफलता की कुंजी है. मेहनत ही सफलता की कुंजी है. चलो పెద్దవాడు ఇది. मेहनत जो भी करते हैं, मेहनत करने वाले हर एक को भी सफलता ज़रूर मिलती है. जो मेहनत नहीं कर पाते हैं वो कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं. సాధారణంగా ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళు డెఫినెట్గా విజయం సాధిస్తారు. మెహనత్ సఫలతాకి కుంజీ హే అంటే కష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు విజయం అనేది తాళం చెవి లాంటిది. కష్టపడే వాళ్ళకి విజయం అనేది ఒక తాళం చెవి లాంటిది. రైటా రాంగా? దీని గురించి చెప్పాలంటే చాలా రకాలుగా చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు. మనకు చాలా ఉదాహరణలు కూడా దొరుకుతాయి. ఉదాహరణకి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టి ఆఖరికి స్కూల్కి కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు. ఫీజు కట్టడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే, ఇంట్లో గడవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పేపర్లు తీసుకొని ఆ పేపర్లు ప్రతి ఇంటికి న్యూస్ పేపర్ వేసి ఆ డబ్బుతో తను చదువుకునేవారు మన రాష్ట్రపతి గారు. అలాంటి గొప్ప పొజిషన్ నుంచి, అలాంటి పేదరికం నుంచి అని ఏ విధంగా ఒక గొప్ప పొజిషన్కి వెళ్ళగలిగారు అంటే కష్టమే దానికి మెయిన్ కర్త కర్మ క్రియ. కష్టపడితే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని చెప్పడానికి ఇదొక గొప్ప ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఇక్కడ కవి చెప్పింది కూడా అదే. కష్టం నీ ఆయుధమైతే శ్రమ నీ బానిస అవుతుంది అని అర్థం. దీనికి అర్థమవుతుందా? రైట్. మెహనత్ హీ సఫలతా కి కుంజీ హై. మెహనత్ కర్నే వాలా వ్యక్తి కభీ నహీ హారతా. చెప్పాను కదా, కష్టపడేవాడు ఎప్పుడూ కూడా ఓడిపోడు. वह हमेशा सफल होता है क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है. అతను ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోడు. ఎందుకు అంటే నిజమైనటువంటి కల్పిత జీవితానికి, కల్పిత ప్రపంచానికి సాకార రూపం అతనే. మనం ఊహిస్తాం, నా ఇల్లు ఇట్లా ఒక సాధారణంగా ఒక ఇల్లు కట్టుకునే వ్యక్తి రకరకాలుగా ఊహిస్తూ ఉంటాడు. నా ఇల్లు డూప్లెక్స్ అయితే బాగుంటుంది, నా ఇంట్లో ఇక్కడ ఇది ఉంటే బాగుంటుంది, అది ఉంటే బాగుంటుంది, ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ విధంగా చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి రకరకాలుగా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ నిజానికి ఆ డిస్కస్ చేయటం వేరు, ఆ ఊహ వేరు.
దాన్ని సాకారం చేసే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఇంటికి కట్టే వ్యక్తి, ఐ మీన్ కష్టపడే వ్యక్తి దానికి ఒక సాకారం చేస్తాడు, దానికి ఒక ఇది తీసుకొస్తాడు. అదేవిధంగా దేన్నైనా సరే ఎంతో కష్టపడితే కానీ ఏది మనకు రాదు. సాధించాలి అనుకోవటం వేరు, సాధించాలి అనే కృత నిశ్చయంతో ఉండటం వేరు. మనం ఎంతో కష్టపడి ఏదైనా ఈజీగా సాధించవచ్చు. అందులో భాగంగానే ఒక కాల్పనిక జీవితానికి సాకార రూపం చేసేవాడే శ్రామికుడు, కష్టపడేవాడు అని చెప్పి ఇక్కడ కవి చెప్తూ ఉన్నాడు. इसके कण कण में पीछे उसी का श्रम है, इसलिए वही कण कण का अधिकारी है. తను కష్టపడతాడు, కష్టపడిన దానికి శ్రమ డెఫినెట్గా ఆ శ్రమకి ప్రతిఫలం ఆశిస్తాడు. నిజానికి ఆ కష్టపడిన వాడికే ఆ శ్రమ యొక్క ఫలితం దక్కుతుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ. క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ముందుకెళ్దామా? एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से. एक व्यक्ति पैसों के बल से जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ बल्कि कहता है, वो कहाँ तक करता है, कहाँ तक नहीं कर पाता है वो भगवान को ही मालूम. लेकिन जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं कर पाता है. ये सब झूठ है. कहने का मतलब है पैसे जिसके पास है उसके पास सब कुछ है बोल के नहीं कह सकते. यही इनका मेन कारण है. एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से. जिसके पास पैसे रहते हैं वो सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता. उसको मालूम भी चाहिए था, उसको मालूम होना चाहिए था वो कुछ नहीं कर सकता. और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल के. जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति पैसे रहते हैं उसके लिए जो कुछ करना है करते रहता है, लेकिन उसको वो कभी भी भोगता नहीं है, वो दूसरा व्यक्ति उसको भोगता है. जैसा कि एक उदाहरण आपको मैं बताऊंगा. जो एक घर बहुत आलीशान बंगला बनाता है बुढ़ा होने के बाद, उस घर में एंजॉय करने के तहत तो बहुत कोशिश करता है. सही में देखा जाए तो वो घर में वो कुछ नहीं रह सकता है. वो सिर्फ वो चले जाता है, उसके बच्चे उसमें भोग करते हैं. कहने का मतलब यही है, एक पाप अर्ध पाप के बल से संचित करता है, उसको भोगता दूसरा है. नर समाज का भाग्य एक है, वह स्वयं बह भुजबल है. नर समाज, इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसका जो भाग्य जो है, सिर्फ वो भाग्य भुजबल से मेहनत करना ही उसका भाग्य है. जो भी मेहनत करता है, जो भी कष्ट करता है, वो कष्ट करने वाले को ही मालूम होता है कि वो क्या करता है. जिसके पास भुजबल रहता है, ताकत रहती है, वो कुछ भी करने के लिए आगे आ जाता है, आगे बढ़ता है, कष्ट करता है. सच कहेंगे तो
मेहनत करना हमारे इंसान को भगवान दिया हुआ एक वरदान है। क्लियर? जिसके समक्ष झुकी हुई पृथ्वी विनीत न बतल है, जिसके पास जिस तरह से वो मेहनत करता है, जिस तरह से वह कष्ट करता है, उसको देख के, वो इंसान को देख के, वो श्रम को देख के नभ आकाश धरती भूमि सब लोग झुक जाते हैं, मतलब उसको सलाम करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। मेहनत करने वालों को इतना ताकत है इस पाठ के अंतर्गत, पाठ के अंतर्गत ही नहीं, बाहर भी ऐसी ही है। जो मेहनत करता है उसको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं हमारे लोग। जो मेहनत के बगैर बातें बोलते रहता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। समझ में आया जी? जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो भी मेहनत करता है, जो भी कष्ट करता है, उसको पीछे रहने मत दो, उसको आगे रहने दो। जो कष्ट करते हैं, जो सही है, जो अच्छे हैं, उनको कभी भी पीछे नहीं रहने देना, उसको आगे ही आगे बढ़ते रहना है, आगे जाते रहना है। इसी समय में ही हम उसको सही रेस्पेक्ट दिए जैसा रहता है, इज्जत दिए जैसा रहता है। जैसा कि एक गांव में 15 लोग नौकरी के लिए आए हैं, 15 लोगों में से 12 लोग जस्ट बातों से काम चलाते हैं, 3 लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो बातें बोलते हैं, जो कहते हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जो काम नहीं कर पाता है उसको सही वैल्यू ही नहीं देते हैं। सच में जो बातें बोलने से उसको, उससे भी, जो बातें बोलने वाले से भी काम करने वालों को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। आजकल ज़माना ऐसा हो गया है, लेकिन जो मेहनत करता है, जो कष्ट करता है, उसको बराबर आगे ही रखना चाहिए। उसको ज़रूर आगे रखेंगे, उसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे तो सही काम करने वाले को सही जगह दिए जैसा रहता है, सही काम करने वालों को सही रास्ते पर चलाए जैसा रहता है। समझ गए? आगे बढ़े। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज इसके कण कण का अधिकारी जन जन है। जिस तरह से मनुष्य जिस तरह से मेहनत करता है, जिस तरह से कष्ट करता है, आगे बढ़ता है, ऐसे लोगों को हम कभी भी आगे बढ़ाते ही रहना है। उसको सही सलामत से देखना है, उसको रेस्पेक्ट करना है। जब उसको हम अच्छे से देख लेते हैं, उस मेहनत को पहचान लेते हैं, तो वो खुशी से और थोड़ा काम ज़्यादा करने लगता है। वो जब काम ज़्यादा करने लगता है तो वो सब दुनिया को फ़ायदामंद बन जाता है। चलिए अब मुझे बताइए, आप लोग कितने लोग आज कष्ट करने वालों को इज्जत देते हैं?
आज कष्ट करने वालों को कोई अहमियत ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। एक बगीचे में, एक मिर्च के बगीचे में 15 मेंबर्स श्रमिक है। उस 15 मेंबर्स श्रमिक में एक बहुत मेहनती करने वाली औरत है। वो बहुत गरीब है। जब उसको एक बेटा है, वो 10 साल का है। वो सोचती है मैं ज़रूर मेहनत करती हूँ तो मेरे साथ मेरे बेटे को भी क्यों नहीं लेके जाऊँ। मेरा बेटा छोटा है, फिर भी उसको बिठा के मैं काटूंगी वो मिर्च को। जब उस बच्चे को लेकर उस मिर्च के बगीचे में चले जाती है, उस बगीचे में वो काम करने लगती है। उसको जितना चाहिए उतना मेहनत कर लेती है। इतना करने के बावजूद भी वो बच्चे का काम करती है, अपना काम करती है, बच्चे का काम करती है, उसका काम करती है। इतना काम करते 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 वो थक जाएंगी, लेकिन उस खेत का मालिक संतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसको मेहनत करने वाले नहीं चाहिए, उसको बराबरी में चाहिए। इंसान जो बड़ा है ना, ऐसे बराबरी में चाहिए। जैसा कि बाकी 15 लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, 14 लोग, उसी तरह से वो बच्चे के बजाय और कोई दूसरा बड़ा आता है तो तब वो संतुष्ट होता था। कहने का मतलब ये है, उसको मेहनत करना का वो जो मिर्च काटने वाला नहीं चाहिए। बड़ों के बराबर वो सरों को देखता है, इंसान को देखता है, काम को नहीं देखता है। तो तब उसको ये मालूम होना चाहिए कि काम करने वाली औरत को हम रिस्पेक्ट दे रहे कि नहीं दे रहे। ऐसा हम कभी नहीं सोचेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएंगे। काम करने वाले कभी रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे हमको। आप सबको, मुझे पता है, आपको मालूम हुआ होगा कि हम इंसान होने के नाते हम सबको रिस्पेक्ट करना होता है, इज्जत देना होता है। हम जब इज्जत देते हैं, मेहनती लोगों को हम इज्जत देते हैं, ऐसे मेहनती करने वालों को हम जितना रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह से वो भी उतना ही रिस्पेक्ट हमें देते हैं। हम जिस तरह से मेहनत करने वाले को, आज नॉट ओनली खेतों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आज सरकारी कामों में काम करने वाले उद्योगों के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आज परिश्रम और कारखानों में काम करने वाले नौकरों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, पूरा दुनिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो काम करने वाले को सही सही जगह मिलता है, जो काम करने वालों को सही सही रास्ता मिल जाता है, जो सही जगह सही आदमी रहता है, तभी हमारा भारत आगे बढ़ता है, तभी मेहनत करने वालों को सही फल मिलता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा कहने का मानना है और इस लेसन में भी कहने का वही उद्देश्य है। समझ में आया आप लोगों को? यही मैं कहते हुए आप लोगों को ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन के अंतर्गत क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं, ग्रामर को भी देख सकते हैं, बिट्स को देख सकते हैं। इस लेसन से 4 मार्क्स क्वेश्चंस आ जाएंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चंस आ जाएंगे, पैराग्राफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये पूरे आपको अच्छे से ध्यान से वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो होना होगा आपको।
जब आप लोग वो टेक्स्ट बुक फॉलो हो जाएंगे, आपको जिस तरह से जो मालूम नहीं हुए नए शब्दों को अर्थ आप मुझे पूछेंगे, आप समझेंगे, तभी आप लोग भी अच्छे से मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे, रातों दिन मेहनत करके टीचर जो बोलता है उसको पढ़ेंगे, तभी आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को मैं यही कहना है, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए। आपको हमेशा हमेशा के लिए मैं साथ रहूँगा। एक हिंदी टीचर होने के नाते आपको जो भी डाउट्स हो मैं पूछिए, मैं बताऊँगा। और आपको जो समझ में नहीं आया है उसके बारे में आप कमेंट में रखिए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। मैं यही कहना चाहूँगा, आपके मम्मी अब्बू ने आपको इतने पैसे रख के पढ़ा रहे हो, तो उनका जो कहना है, उनका जो मानना है, आपको एक अच्छा पोजीशन में देखना है। उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। उस मेहनत को आप देखना होगा, समझना होगा, आप आगे बढ़ना होगा। आपके लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो आपको बहुत कष्ट करना होगा। जब आप लोग बहुत कष्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। आपके साथ हम हमेशा रहेंगे। जो भी आपको कहना है, जो भी आपके डाउट्स है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में रखिए, हमें ज़रूर आपको डाउट्स क्लैरिफिकेशन करेंगे। इस तरह से 4th लेसन कर्ण कर्ण का अधिकारी को समाप्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए, और जो लोग हमारे इस ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग शेयर करते हैं, जो लोग रेगुलरली लेसन सुनते हैं, उन सब को हमारे ओर से शुभकामनाएं देते हैं, थैंक्स कहते हैं, नमस्कार कहते हैं। जितना हो सका उतना उनको हम न्याय करेंगे। हमारे लेसन्स को इसी तरह से फॉलोअप करिए। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार कहते हुए मैं इस पार्ट को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।